हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। 6 सितंबर। हालांकि बर्तन जड़ पदार्थ हैं, फिर भी जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वे बहुत आवाज़ करते हैं। तो फिर जीवित बर्तनों का क्या कहना, यह स्वाभाविक है। किंतु चूंकि हम सब श्री कृष्ण के लिए कार्य करने हेतु कटिबद्ध हैं, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तृणावदपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। यह वैष्णव धर्म है। तो मेरा निवेदन है कि उद्विग्न न हो, आओ गंभीरता से अपनी सेवाएं करें। वृंदावन, 6 सितंबर 1975। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। The following is a class on Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, text number 20th, given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on 23rd August 1972 in Los Angeles. Shri Gurun Vaishnava. Translation. Thus established in the mode of goodness, the man rejuvenated by loving service to the Lord gains liberation from material association, mukti, and comes to know scientifically of the personality of Godhead. So, Bhagavat Tattva Vijnana. Vijnana means science. It is not concoction, speculation. It is a science. Just like mathematics is a science. 2 plus 2 equal to 4. You cannot make 2 plus 2 equal to 5 according to your whims. No. Anywhere you go, it doesn't matter. Because it is science, so either in America or in India or in England, everyone will accept 2 plus 2 equal to 4. That is science. Science is true everywhere. Not that I can imagine my God according to my whims. You can imagine your God. That is going on. No, how you can imagine? There is no question of imagining. This Bhagavat Tattva Vijnanam, this truth, this science can be understood by a person who is Mukta Sangha. Mukta Sangha, means free from material association. He can understand. Mukta Sangha Sajayat. And the condition is Evang Prasanna Manaso. When you are enlightened, engladdened, because so long we are in the jurisdiction of ignorance and passion, there cannot be any jubilant. There cannot be any enlightenment. Therefore you have to come to the platform of goodness. As it is stated in the previous, Tada rajastamo bhava kamalobhadayascha je cheta etairana vidyam. Cheta, everything is working within the heart. The whole thing, heart is the central point of this body. So, when the heart is not punctured by the Rajagun and Tamagun, and you become situated on the modes of goodness, then you become jubilant. Jubilant means he can understand at that time that why these people are working so hard, like cats and dogs. The human life is meant for understanding what is God. Athata Brahma Jigyasa. This life is meant for simply understanding what is God.
The animal life, they cannot understand. That life is different. But the human life is developed, consciousness is developed, he can understand. This is called goodness. Tasyaiva heta prajateta kovida. How one becomes intelligent? He can study. When he is on the platform of goodness, he can study the nature. So why I shall work so hard for getting my material necessities? This is being supplied by nature. The birds and beasts, they are getting their food, they are getting their mates, they are being protected in their own way. They have got a sleeping nest apartment. So even an animal, even a small ant, we sit down in the garden, we see, even the small ant, it has got family, it has got home, it has got eating, everything is there. From ant to the elephant. Who is supplying? They have no business. They do not do any business. They have no profession. But they are getting their necessities of life. Therefore, intelligent person, this is, goodness means intelligence, prakash. Ignorance means darkness. In darkness we cannot see what is what. So, goodness means light. Anyone can see that there are 8,400,000 species of life or forms of life. They are getting their food, they are getting their shelter, they are satisfying their sex, they are also defending without any extra endeavor. By nature they are doing their own way. So why human being, so-called civilized human being, is so much harassed for these four things? We have got better intelligence, we shall be rather more comfortable without struggling for existence than the animals. But our struggle for existence is greater than their struggle of existence. What is this civilization? This is not civilization. Everyone wants peaceful, calm life. Even those who are struggling so hard, big business magnate, still at the weekend they find out some secluded place, nice place without trouble. That is the nature. That human nature should be like that. Then why should we work so hard simply for eating, sleeping, mating? This is a wrong type of civilization. But at the modern age, the human society is so made that one has to work like ass whole day and night simply for satisfying these four necessities of life. That is also not guaranteed. We thought that in your country, when I was in India, I was contemplating coming to a country, I thought that America is very rich. There is no problem for eating, sleeping, mating. Actually, there is need. There is no problem. But the civilization is so made that there is no shelter. They are lying down on the park, on the street. Why? There is no necessity, but they have created such civilization that a certain section of people are voluntarily are being obliged, lying down on the street, on the park, no dress, no food, no fixed up sex life, everything is topsy-turvy.
Everything is topsy-turvy. But this is not civilization. This is not civilization. Then how they can understand God? Their mind is always disturbed and full of anxiety. So first of all, you have to come to the state of tranquility. Prasanna manasu. Evam prasanna manasu. Prasanna manasu means always jubilant. That can be achieved by this process. Bhagavad Bhakti Yoga. By devotional service. No, by no other process. Evam prasanna manasu Bhagavad Bhakti Yoga. One can be jubilant only by practicing Bhagavad Bhakti Yoga. There are many other yoga systems, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Hatha Yoga, everything you endeavor for spiritual enlightenment, that is called yoga. So there are different types of yoga. But real yoga is Bhagavad Bhakti, devotional. हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। उत्सिदेयुरिमे लोकान् न कुर्यान् कर्म चेदहम् शंकरस्य कर्तास्य उपहन्यामि मा प्रजः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं आवंचित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं। कौन है दुनिया में जो जिम्मेदारी लेता है? लोग तो भागते हैं जब कुछ गलत हो जाए, नहीं नहीं हमने नहीं किया, उसने किया। देखिए भगवान यहाँ सिखा रहे हैं। अब भगवान कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? तो भगवान बोलेंगे आखिर तो सुप्रीम लीडर तो वही है। तो भगवान हमको सिखा रहे हैं कि भले ही मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, मैं आत्मा रहूं और न मेरा कोई ड्यूटी है, फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, समाज के लिए। तो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कर्म सेवा छोड़ना नहीं चाहिए, उसको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं। नहीं तो क्या होगा? वर्ण संकर होगा। जो वर्ण संकर होगा तो समाज में संकट हो जाएगा, और आज वही हो रहा है। होगा क्या? हो रहा है। वर्ण संकर क्या होता है? जब बच्चे जो पैदा होते हैं, अवांछित संतानें, अवांछित मतलब अनडिजायरेबल, मतलब अरे ये कैसे पैदा हो गया, इसमें कोई गुण नहीं है, इसके कर्म सारे गड़बड़ हैं, इसमें आसुरी प्रवृत्ति भरी पड़ी है, रजोगुण तमोगुण से, ये वर्ण संकर है। ये तब होता है जब पति पत्नी धर्म का पालन नहीं करते। ये तब होता है जब गर्भदान संस्कार नहीं होता। और आज समाज में, विदेशों में तो छोड़ दीजिए, भारत में गर्भदान संस्कार नहीं हो रहा है। तो जो भी उत्पत्ति हो रही है बच्चों की, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, ये सब रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित हैं। इसीलिए न माता पिता कहते हैं बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, क्योंकि रजोगुण तमोगुण इतना हैवी है। तो ये तो माता पिता का जिम्मेदारी है, धर्म का पालन करें। अगर माता पिता दोनों आध्यात्म में लगे हुए हैं, गर्भधान संस्कार हो रहा है, तो संतान भी सतोगुण वाली आएगी, भक्त जो होगा वही बनेगा। तो बता रहे हैं, नहीं तो वर्ण संकर। और आज देखिए पूरे संसार में क्या चल रहा है, सब वर्ण संकर हो रहा है। सब सारे के सारे क्रिमिनल, सब पाप में लगे हुए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन भगवान ने अपना उदाहरण तो प्रस्तुत किया, लेकिन हमने भगवान की मानी नहीं, भगवान की सुनी नहीं। भगवान ने जैसे कहा वैसे हम अपने संसार को नहीं चला रहे हैं। तो क्या मिल रहा है?
ये मिल रहा है आज। कहीं चोरी, कहीं मर्डर, कहीं रेप हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं कोई धोखा दे रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। किसी पे कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। आज संसार की ये परिस्थिति हो गई। कहाँ कौन किस पे भरोसा कर पा रहा है? पत्नी पति पे, पति पत्नी पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। ये तो परिस्थिति होती है। भाई भाई पे भरोसा नहीं कर रहा है, माँ बाप बच्चों पे नहीं, बच्चे माँ बाप पे नहीं कर रहे, जनता सरकार पे भरोसा नहीं करती, सरकार जनता पे भरोसा नहीं करती। सारे देशों का यही परिस्थिति है, यह वर्ण संकर। और भगवान इसीलिए तो आते हैं इसको सेट करने के लिए। गीता में भगवान बताते हैं, कब कब मैं आता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। तो कोई कहेगा फिर अभी धर्म की इतनी ग्लानि हो रही, भगवान क्यों नहीं आ रहे? प्रश्न पूछते हैं। भगवान आ रहे हैं, आ गए हैं। भगवान 500 साल पहले आए। कृष्ण और राधा रानी दोनों का कंबाइंड फॉर्म, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये राधा कृष्ण का मिलन जो फॉर्म है, ये चैतन्य महाप्रभु आए, भक्त के रूप में आए। भगवान भक्त के रूप में, और क्या किया? प्रचार किया भगवत गीता और हरे कृष्ण महामंत्र का। जो गीता कृष्ण ने दी थी उस गीता को प्रचार किया और हरे कृष्ण मंत्र दिया। हम जब कर रहे हैं क्या? कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में कृष्ण ने अवतार लिया है इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। क्या हम इसको स्वीकार कर रहे हैं? भगवान तो आ गए। भगवान पहले हमको समझा रहे हैं गीता के माध्यम से, फिर हम नहीं समझे तो वही भगवान एक भक्त के रूप में आ गए और करके दिखा रहे हैं। देखो, अगर नहीं समझेंगे भगवत गीता से, हरिनाम नहीं जप करेंगे, महाप्रभु प्रेम से समझा रहे, तो आएंगे फिर। कुछ समय रुक जाइए, भगवान कल की आएंगे, तलवार लेके आएंगे, सबको काटते जाएंगे। क्यों? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सबके सब दुष्ट हो जाएंगे, सबको विनाश करेंगे। वो बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर हम बातों से मान जाए, सुधर जाए, तो हमारा भला है। कौन खुश होगा? किसको आनंद मिलेगा? हमें ही ना। भगवान हमारे आनंद के लिए तो सोच रहे हैं। कोई बच्चा है, दवाई नहीं लेता है, पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई करो, नहीं करता, नहीं करो। माँ इतना समझाती, बेटा पढ़, तेरा करियर अच्छा बनेगा। नहीं पढ़ता है, फिर रात को आते पिताजी, पकड़ेंगे कॉलर से, लगाएंगे कान के नीचे दो, तब पढ़ेगा बैठ के रोता रोता। ऐसा होता है ना। खाना नहीं खाऊंगा, माँ तो प्यार से समझाती है, कभी कभी लगा भी देती है 2-4, लेकिन पिता से जनरली बच्चे डरते हैं। तो भगवान बता रहे हैं हमको, यहाँ पे आते हैं हमको सिखाने के लिए। अब देखिए, भगवान जो करते हैं वो हमें नहीं करना है, भगवान जो कहते हैं वो हमें करना है। भगवान जो करते हैं वो हम करने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वे भगवान है। कर सकते हैं, उठाइए गोवर्धन। अरे एक उंगली पे भगवान ने गोवर्धन उठाया था, आप पूरे दोनों हाथों पे उठा के दिखाइए, नहीं उठा पाएंगे। हम भगवान को नकल नहीं करना, उनको पालन करना है। भगवान जैसा करते हैं वैसा नहीं करना है, भगवान जैसा कहते हैं वैसा करना है। ये चीज भगवान ने सिखा रहे कि मैं अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रहा हूं और तुम सबको बता रहा हूं, समझो। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोग नियम पालन करो, गवर्नमेंट के कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं, पालन करो। नहीं पालन करेंगे जेल में डालेंगे। जेल में भी नियम होते हैं, वहां पे भी नियम तोड़ेगा, वहां पे भी किसी को मारेगा, झगड़ा करेगा तो उसको फिर काल कोठरी में डालते हैं, वहां पे भी नियम तोड़ेगा। जो उसको खाना देने जा रहा है उसको मारेगा, फिर गवर्नमेंट परेशान होकर क्या करेगा? उसको लगाओ, उसको फांसी पे। तो ऐसे ही हम क्यों ऐसी परिस्थिति में आना चाहते हैं? हम भगवान का अगर सुन ले, समझ लें, तो आनंद हमें ही मिलेगा, हम ही प्रसन्न रहेंगे, आजाद रहेंगे। तो ये भगवान यहाँ पे हमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों को समझ के अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा। Gaura, Gaura, Nittai Gaura.